हेलो अस्सलाम वालेकुम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम I am Dr. Mahbub, Assistant Professor in Surgery Department. Today our topic for discussion will be appendix. We will discuss briefly about the appendix. First of all, the anatomy of the appendix, some microscopic features of the appendix, pathophysiology of the appendicitis, typical symptoms and atypical symptoms of the appendicitis, some types of appendicitis, then treatment, management, laparoscopic, everything regarding the appendicitis. And in second session, we will discuss about the if patient presents with the mass in the right iliac fossa. So that will not only be due to appendix, but certain other causes can cause mass in the right iliac fossa. Briefly, we will discuss. First of all, acute appendicitis. Objective of the lecture is to understand the clinical presentation of appendicitis, epidemiology and pathophysiology of the appendicitis, how to evaluate the patient with appendicitis, and how to keep mind in the different differentials regarding the appendicitis, how to pinpoint and diagnose appendicitis, and how to treat it. Appendicitis, acute appendicitis occurs when acute inflammation involves the appendix. What is the appendix? Appendix is a vestigial remnant in any human being, and its site or location is at the junction of the ileum and cecum. Variation in presentation depends on the severity of the process at the time of clinical presentation. Common cause of admission is almost 2% of all hospital admissions is appendix, and appendicitis is very common in general surgery departments. It's bread and butter of the surgeon. 10% population affected in their lifetime, and it never differentiates between age, but young age is more involved. Kids and young age is more involved as compared to the elders. Peaks in childhood and adolescent but can occur throughout all the ages. बूढ़ों में भी हो सकते हैं. And men are suffered more as compared to the women. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटमी, ब्रीफ एनाटमी आप देख सकते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है. एट द जंक्शन ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज द vestigial remnant called the appendix. Appendix in the human being basically it performs function of the lymphatic organ. थोड़े बहुत lymphatic इसमें होते हैं जो इसकी immunity के लिए यूज किए जा सकते हैं. And during appendectomy, these are tinea coli, condensation ऑन द लार्ज बॉल. डिफरेंट तीन तरफ से जो टीनी आ रहे होते हैं इनको लोकेट करके हम अपेंडिक्स को फाइंड आउट करते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी. Blood supply of the appendicular by the appendicular artery. An appendicular artery from the ileocecal artery. Ileocecal artery is brought from the right colic artery from the celiac trunk, and blood return, venous return by the appendicular vein is goes towards the portal vein, and nerve supply by the sympathetic nerve. जिस वजह से पेशेंट को पेन होते हैं. एनाटॉमिकल वेरिएशन बहुत सारी वेरिएशन हैं. I think most of the common organ containing a lot of variations in the human body's appendix. Different clockwise जो इसकी लोकेशन है, तो 12 o'clock is retrocolic and retrocecal. 2 o'clock पे upward and to the left pre-ileal and post-ileal. अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इसमें pre-ileal ये pre-ileal है और ये post-ileal पीछे ileum के और ऊपर. 3 o'clock पे pro-enteric जो 3 o'clock पे बिल्कुल है, ठीक है, वो enteric के ऊपर है, ileum के ऊपर है. 4 o'clock पे pelvic condition position है, descending into the pelvis. 6 o'clock पे subcecal है जो cecum के पीछे जा रही है. This is the 6 o'clock subcecal appendix. And 9 o'clock is the cecum pointing towards the inguinal canal. This is the 9 o'clock. ठीक है, paracecal appendix. And 11 o'clock is paracolic. This is the paracecal or paracolic upward, and retrocecal, this is the behind the cecum. So different clockwise sites and locations describe the site of the appendix during surgery. Some percentage regarding this is the subcecal. Retrocecal is 64% most common. The subcecal is 2%. Pelvic is 32%. Pre-ileal is 1%, and post-ileal is 0.5%.
How appendicitis occurs due to obstruction of the lumen of the appendix by the fecal-lethal's mucus, foreign body, any other particle contained in the food. Tumor, some tumors of the appendix like missionary tumor, carcinoma tumor, आप हम आगे देखेंगे जो उसकी वजह से obstruction होती है और appendicitis की picture present होती है. I remember one patient in Shehzad Hospital who female lady presented with appendicitis which was opened up and there was a huge tumor involving the cecum. Basically, preoperative work was efficient and secondary bacterial infection simply causing the appendicitis. Obstruction of the lumen leads to appendicular gangrene and perforation और उसका एक pathological process है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Lymphoid hyperplasia leads to luminal obstruction. Continuous mucus secretion and inflammatory alveolate increases the luminal pressure and obstructs the lymphatic pressure. Pressure increase हो रहा है और lymphatics drainage hamper हो रही है. So edema and mucosal ulceration develop with bacterial translocation and condition progresses. Distension causes venous obstruction and ischemia leads to bacterial invasion causing acute appendicitis. What are the stages of appendicitis? Early stage है, middle stage है, late stage है. Early stage में obstruction है, obstruction के बाद mucosal ulceration है, bacterial diabetes है, appendicular distension है due to convoluted fluid और increased pressure है और efferent nerves are stimulated and patient perceives mild visceral periumbilical और सबसे पहले periumbilical epigastric pain शुरू हुई है which lasts about the 4 to 6 hours. And increasing pressure exceeds capillary pressure, pupillary pressure. जब capillary से ज़्यादा जाता है pressure, then ischemia occurs and obstructs the lymphatics as well, and venous congestion is also hampered. तो transmural spread of bacteria causes acute suppurative appendicitis. Ischemia होता है, suppurative infection है, और simple appendicitis से वो suppurative appendicitis में change हो जाता है. When inflamed cirrhosis of the appendix comes in contact with the parietal peritoneum, visceral peritoneum से parietal peritoneum कहता है, patient typically experiences a pain, shift of pain from periumbilicus to the right lower abdomen. The typical history in the appendicitis differentials, we say whole of the abdominal pain involving the whole abdomen radiating to the right iliac fossa. तो पहले visceral peritoneum involve होती है, then parietal की वजह से pain shift होती feel होती है, which is continuous. जब उधर पेन आती है तो पेन is continuous and severe as compared to the early stage. This is the little bit appearance of the mild appendicitis. Appendix is swollen, engorged veins नज़र आ रही हैं, edema है उसका cirrhosis का. This is the mesoappendix, this is the cecum and this is the distal end of the ileum. Gangrenous appendix, when venous arterial दोनों थ्रोम्बोज हो जाती हैं स्प्लाइस तो गैंग्रीन डेवलप हो जाती है. Or when gangrene develops, it operates usually within 48 to 72 hours due to persistent tissue edema, ischemia, and gangrene. Perforation can be localized and generalized. Peritonitis cause कर सकती है अगर वो उस एरिया में contained है. This is the localized perforation or perforation अगर spread हो गया in the lower abdomen and whole of the abdomen. This is generalized peritonitis. So localized peritonitis can be converted to generalized peritonitis अगर patient problem time intervene नहीं करते. Or this is more lethal when generalized peritonitis can be converted into the full-blown sepsis and septic shock and leading to the gross mortality of the patient. This is the gangrenous appendicitis appendix and this is the perforated appendix. ये perforation कहीं भी हो सकती है, tip of the appendix पे है, body पे है, and base of the appendix जो cecum के साथ होती है उसको base कहते हैं. Phlegma on appendicitis and abscess, when the inflamed or perforated appendix अगर wall off हो जाए by the adjacent greater omentum, small bowel loops and cecum as well, तो एक phlegma on एक mass बन जाता है और जब उसमें pus conclude full हो गई है तो that is called the appendicular abscess or focal abscess formation. This is the appendicular abscess formation. ये appendix है ये और यहाँ पे ये सारी abscess बनी हुई है and this is the cecum. Spontaneous resolving appendicitis, अगर if the obstruction is relieved, it's less likely. अगर obstruction relieve हो गए तो सारी inflammatory process is reversed back and this occurs with other symptoms of the lymphoid hyperplasia अगर है lymphoid regress कर गए हैं या fecal pass through हो गया
towards the cecum, then appendicitis is spontaneously recovered. But I have never seen a patient with recovering appendicitis. उनको एंटीबायोटिक्स जो नोटा है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ appendicitis वो उनको एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है देन ऑफनली पेशेंट रिकवर. तो थोड़ा सा एलाबोरेटम है इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेज हुआ, lymphoid swelling हुई, डिक्रीज विद venous drainage है, thrombosis है, बैक्टीरियल इन्वेजन है, abscess formation, gangrene, perforation 24 to 36 hours and peritonitis जो localized or gross peritonitis. Gross appearance of the appendix is normal. Glistening serosa is transferred into dull granular arteriomatous surface जो हमने देखा है. पहले ग्लिसनिंग में कॉज होता है वो डल में चेंज हो जाता है जब इन्फ्लेमेशन होती है और अपेंडिसाइटिस डेवलप होता है. माइक्रोस्कोपिक पिक्चर 3 टाइप ऑफ अपेंडिसाइटिस आर सीन ऑन माइक्रोस्कोपिकली. अर्ली एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो हमने पहले बात की, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स थोड़े होते हैं इन द म्यूकोजा, सब म्यूकोजा मस्कुलर प्रोप्रिया एंड सब सेरोजल वेसल्स आर कंजेस्टेड. ये थोड़े से न्यूट्रोफिल्स हैं, वेसल्स कंजेस्टेड हैं. And number 2 is the acute suppurative appendicitis when the neutrophil exudate is present in abundance. ज़्यादा तादाद में न्यूट्रोफिल्स हैं और वहाँ पे फाइब्रोप्यूरुलेंट रिएक्शन है, उधर से रोज़ा abscess formation है और ulceration and purpura suppuration exists in the suppurative necrosis in the mucosa place. This is somewhat collection. This is the pus formation and collection and suppuration inside the appendix. Acute gangrenous appendicitis when hemorrhage occurs and green ulceration of the mucosa, उसको हम gangrenous कहते हैं. Green gangrenous mucosa necrosis extending to the serosa. This is the site of gangrenous and hemorrhagic serosa. How patient presents with the abdominal pain, जैसे हमने पहले कहा, and you have to ascertain the characteristics of the pain, severity of the pain, and usually less than 2 hours. ये पेन की और बाकी चीज़ों की जो डिफरेंशियल्स है वो डिफाइन करती है कि दिस इज द केस ऑफ appendicitis or any other differential is present. Crampy colic abdominal pain, initially central abdominal pain जो हम कह रहे हैं like gastric pain and sharp more localized to the right iliopsoas. जब आहिस्ता आहिस्ता वो अर्ली से जो सुपरेटिव टाइप में आता है तो पैराइटल पेरिटोनियम इन्वॉल्व होती है और पेन लोकलाइज हो जाती है राइट इलियोकोसा में. और मैक्सिमम टेंडरनेस है एट मैकबर्नीज पॉइंट, वो भी हम आगे देखते हैं मैकबर्नीज पॉइंट क्या है. तो एसोसिएटेड सिम्टम्स कैन बी नाजिया, वोमिटिंग, फेरेक्सिया, एनोरेक्सिया, डायरिया, इंजरी सिम्टम. थोड़ा सा मैंने उसको एलेबोरेट किया है पिक्चर वाइज, वो भी हम देखते हैं. तो अर्ली जो है प्योरली लोकलाइज पेन है, देन लोकलाइज हो गई और उसके बाद पेन जो इंटेंस कॉन्स्टेंट एंड शिफ्टिंग होती है, ठीक है, और ये सारे फीचर्स इसके साथ एसोसिएटेड है. तो पेरिंग लाइकल कोलिक पेशेंट जो है लाइकस के अराउंड जो है वो पॉइंट आउट करेगा एंड पेन शिफ्टिंग टू द राइट इलियोकोसा. एंड एनोरेक्सिया इज एन इम्पोर्टेंट फीचर एंड दिस इज इंक्लूडिंग इन द एलिवेटेड स्कोर हो गई, आप देखेंगे. और बड़ी इंपॉर्टेंट एक फीचर है जो appendicitis में. Nausea and vomiting is also associated. And when you examine the patient, generally the flushing is present on the face of the patient. Fecal or a fecal smell है मुंह से. Distress में होगा patient due to pain, due to tachycardia, due to fever, due to anorexia, vomiting, nausea. बहुत सारे फीचर्स हैं. सर्जरी का एक फेयर होता है, क्लिनिशियल्स है, टाइम देना है. एंड पोजिशन ऑफ द पेशेंट कौन से पोजीशन में है, इट शोज पेशेंट को किस जगह पे पेन हो रही है. हाउ इज द पल्स, हाउ इज द टेम्परेचर, हाउ इज द ब्लड प्रेशर. पल्स विल बी टैकीकार्डिया पेशेंट होगा, टेम्परेचर हो सकता है, ब्लड प्रेशर कैन बी नॉर्मल एंड बिलो नॉर्मल हाइपोटेंशन अगर सेप्सिस में पेशेंट जा रहा है. यू हैव टू इंस्पेक्ट, पैल्पेट एंड परकासी एब्डोमेन, जिस तरह हम पहले कहते हैं. तो इंस्पेक्शन पे जो है वो एब्डोमेन थोड़ा सा लेस मूवमेंट होगी, एब्डोमेन की थोरैको एब्डोमिनल मूवमेंट होगी. पेशेंट को एक साइड पे पेन पॉइंट आउट कर सकता है, आगे हम देखते हैं पॉइंटिंग साइन है. When you palpate, you have to palpate the tenderness and the bone tenderness over the McBurney's point. McBurney's is a point from the blackest to the spherical spine. और जब lateral 1/3 है उस पॉइंट पे, उसका नाम McBurney's point है, वहाँ पे टेंडर होगा पेशेंट. और टेंडरनेस जब आप प्रेस करते हैं तो पेशेंट पेन फील करता है, और जब डी प्रेस करके छोड़ते हैं दिस इज द बोन टेंडरनेस. तो सर्टन साइंस हैं जैसे रॉफसिंग साइन है, स्वास साइन है, ऑब्चुरेटर साइन है, वो हम अभी डिटेल में आगे देखते हैं. एंड समटाइम यू हैव टू
and you feel the abdominal mass. This if the time is more in management तो पेंडिकुलर mass डेवलप हो चुके होते हैं, तो वो हम पायरेक्सिया, टैकिकार्डिया, टंग जो है फर्ड और वाइट हो सकती है, और फिटरोरस है, पॉइंटिंग साइन अभी हम देखते हैं, कफ साइन व्हेन यू से पेशेंट टू कफ तो पेशेंट तक के फलाने का कुछ साइन है। इस तरह लोकलाइज्ड टेंडरनेस है, मसल गार्डिंग है, रिजिडिटी विल बी प्रेजेंट, एंड दो टिपिकल जो साइंस हैं वो हम अभी देखते हैं। पायरेक्सिया कैन बी प्रेजेंट, a localized tenderness in the right iliac fossa, and this is a McBurney spine starting from like is up to the pelvic spine. तो three parts में डिवाइड करें तो lateral 1/3 का जो पॉइंट है ये दिस इज द मैकबर्नी स्पाइन टिपिकल है। यहाँ पे आपने ऐसे इंसियन लगाया, दिस इज कॉल्ड एज अ ग्रीडायरल इंसियन, और यहाँ आपने रेक्टस शेप के इस तरफ लगाया वो उसको कहते हैं लेंस इंसियन, वो भी हम आगे देखते हैं जब हम इसको ऑपरेट करेंगे। रिबाउंड टेंडरनेस व्हेन यू प्रेस ऑन द पेशेंट एब्डोमेन, so indirect tenderness will be present positively throughout the abdomen. प्रेस करके ऐसे छोड़ते हैं तो रिबाउंड टेंडनेस and guarding muscle guarding and rigidity can be present in the patient. Pointing sign asks the patient where is the pain, तो he will point, he or she will point एक finger से तो यहाँ पे ज़्यादा दर्द है। वैसे तो डिफ्यूज अगर पेन होगी तो पॉइंटिंग साइन इज हेल्पफुल। This is the SOS sign. Patient will lie with right hip flexed for pain. फ्लेक्शन में उसको आराम रहता है, जब आप उसको एक्सटेंड करेंगे हिप को तो ही विल स्टार्ट पेन। इसका मतलब है कि जो अपेंडिक्स की पोजीशन है इट्स ओवर द सॉस मसल जो नीचे पुश एब्डोमिनल वॉल में आ रहा है। पेशेंट को सॉस साइन इज पॉजिटिव फॉर द appendicitis, pointing appendix to the psoas muscle. This is obturator sign, hip is flexed and internally rotated, और अगर अपेंडिक्स जो है वो टच करे ऑब्चुरेटर इंटरनस के साथ तो जिस मैन्यूवर विल कॉज पेन इन द हाइपोगैस्ट्रियम, दिस इज ऑब्चुरेटर साइन। तो ये टिपिकल साइंस हैं जो उसके लोकेशन के लिए। रॉफ्सिंग साइन ये है कि व्हेन यू press the patient on the left iliac fossa, patient will feel pain on the right iliac fossa। तो वो थोड़ा सा जो parietal पेरिटोनियम इन्फ्लेम्ड है उसकी मूवमेंट्स जब राइट साइड पे जर्क होती है तो उससे पता चलता है कि ये अपेंडिसाइटिस है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एज वाइज बड़ा ज़रूरी है। चिल्ड्रन में मुख्तलिफ हैं, अडल्ट मेल अडल्ट फीमेल एंड एल्डर्स में। बच्चों में गैस्ट्रोएंटेरिटिस, डिसेंटेरिक रेटिनाइटिस, गला ख़राब है वो सारे नीचे आ जाता है। लीफ नोड्स में मैकस डायवर्टिकुलाइटिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इन द किड्स, जो आइलियोशिकल जंक्शन से 10 फीट के डिस्टेंस पे होता है। इंटरसोसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल, जो आपके इंटरसोसेप्शन के फीचर्स हैं वो आप उससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हैनॉक्स कोलिन पर्परा जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा होता है उस पेन होती है एब्डोमेन में। दो बार नमोनिया कैन प्रेजेंट विद द चेस्ट पेन एंड फीवर। तो ये बच्चों में थोड़ी सी डिफरेंट है वैरायटी। अडल्ट में रीजनल एंट्राइटिस है, यूरोटेरिक कोलिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड विद द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई। परफोरेटेड अल्सर, जुडिनल अल्सर जब ग्रेविटेट करता है राइट पैराकोलिक गटर में तो अपेंडिसाइटिस की पिक्चर आ सकती है। टॉर्जन टेस्टिस अगर अनडिसेंडेंट टेस्टिस है और ऊपर एब्डोमेन में टॉर्जन हो गई है तो दिस इज अनडिसेंडेंट टेस्ट, टॉर्जन ऑफ द अनडिसेंडेंट टेस्टिस। पैंक्रेटाइटिस होल एब्डोमेन इन्वॉल्व करता है, लेकिन अगर फोकल लीक है तो राइट साइड पे हो सकता है। रेक्टस हेमाटोमा मोर कॉमन इन द एल्डर्स, बट रेक्टस हेमाटोमा आफ्टर ट्रॉमा कैन प्रेजेंट इन द एडल्ट्स। एंड एडल्ट फीमेल में मिटलस्मस सिंड्रोम, मिड साइकिल जो रप्चर ऑफ द ओवेरियन सिस्ट, rupture of the ovarian follicle is caused as a mid-cycle pain, Mittelsmith pain, serpingitis, pyonephritis। UTI की पिक्चर्स हैं, PID की पिक्चर्स हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है अगर पेशेंट इज मैरिड एंड समटाइम वेरी रेयरली unofficial to cut, but you have to rule out the pregnancy in unmarried female as well. Torsion and ruptured ovarian cyst, endometriosis, and in the elders, diverticulitis, diverticulosis and diverticulitis is very important. Intestinal obstruction is very important. Colonocarbcinoma, mesenteric ischemia, and aortic aneurysm. These are the features for the differential in the elders. ये सारे डिफरेंशियल जो हमने अभी देखे हैं इनको रूल आउट करने के लिए यू नीड एडिशनल टेस्ट to rule out the appendicitis. WPC is very important.
उसमें TLC काउंट ज़्यादा होगा। यूरिन में यूरिन सेल्स अगर 5 सेल्स आते हैं तो UTI की तरफ जा सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो प्रॉपर प्रेगनेंसी की तरफ जा सकते हैं। एंड स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें एल्वेरेडो स्कोर है, उसके मुताबिक आप देखते हैं कि स्कोर कितना है, पेशेंट है नहीं है, उसके मुताबिक। तो सिम्टम, साइंस, लैब्स, ये 3 चीज़ें हैं उसको डिफरेंशिएट करती हैं। हर सिम्टम का साइन है, स्कोर है, हर साइन का है, हर लैब का है। दूसरा जो माइग्रेटरी पेन है 1 पॉइंट, एनोरेक्सिया 1 पॉइंट, nausea and vomiting 1 point. Signs readily for tenderness 2 points. Most important thing is tenderness. Rebound is 1 point, fever 1 point, lab leukocytosis 2 points, and shift to left neutrophils जब फुल न्यूट्रोफिल हैं या सेगमेंटेड हैं ये 1 पॉइंट है और टोटल स्कोर इज 10। तो सारा कंक्लूड में स्कोर बिलो 5 is strongly against the diagnosis of appendicitis, while a score of 7 or more is strongly predictive of acute appendicitis. In patient with an equivalent score of 5 to 6, CT scan is used in the USA to further reduce the rate of negative appendectomy. लेकिन इसमें हमारा जो एक एक्सपीरियंस है, क्लिनिकली assessment and clinical judgment is most important than any score and any investigation in the patient. And I have challenged even CT scans regarding the ruling out the appendicitis. और CT कह रहा है जी appendicitis नहीं है और clinically है, तो जब आप ऑपरेट करते हैं तो appendicitis inflamed. The clinical assessment is more important. Radiology, plain abdominal film, rule out the obstruction. अल्ट्रासाउंड अपेंडिक्स अल्ट्रासाउंड बता देता है प्रोब टेंडरनेस है, फ्लूइड है, परफोरेटेड है, गैंग्रीनस है, थोड़ी सी पिक्चर ज़रूर देता है। अल्ट्रासाउंड पेल्विस एंड रीनल ट्रैक को देखने के लिए, PID को रूल आउट करने के लिए, UTI को, यूरोटेरिक कोलिक को, यूरोटेरिक स्टोन को रूल आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द लास्ट रिजॉर्ट जो एनहेंस्ड ओरली एंड IV enhanced CT scan is very important, and at the last resort for the ruling of the appendicitis. Treatment: if clinical uncertainty, observe the patient, give anesthesia, IV fluids, NPO, and reassess the patient. Frequent reassessments will lead to the conclusion कि appendicitis है, and sometimes you have to observe, अगर थोड़ा सा difficult case है. And clinical diagnosis, initial management as above plus antibiotics, वो आप diagnosis शुरू कर देते हैं, ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं आफ्टर योर प्रोविजनल डायग्नोसिस. एंड इफ द appendicitis is finalized after investigation and frequent reassessments, you plan for the appendectomy by open technique or laparoscopic technique. ओपन जो हम बात कर रहे थे, लेंस एंड सीन है, जो मिड क्लेविकुलर से मिड इंग्वाइनल लाइन आती है एट द लेवल ऑफ रेक्टस मसल. तो रेक्टल मसल का जो लेटरल बॉर्डर है उस पर एक लेंस एंड सीन है जो कॉस्मेटिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन यंग फीमेल्स. एंड ग्रिड आयरन इज एट द लेवल ऑफ मैकबर्नीज पॉइंट, जो परपेंडिकुलर एक सीन है 2/3 above 1/3 1/3 above 2/3 below. दिस इज अ मसल कटिंग. ऊपर में मसल हम स्पेयर करते हैं जो अब्डोमिनल मसल है, और इसमें मसल कट करते हैं. पेरिटोनियम इज हेल्ड by the aortic lips. Peripheral pus central pulse sensitivity appendix is identified by locating the tinea coli of the cecum and large colon. Mesoappendix is visualized. Mesoappendix then divided. Appendix base is sutured and divided. And severity is according to the findings. Inflamed hair, infected hair, virulent exudate है, perforated है, और अपेंडिक्स अगर नॉर्मल भी है 10 to 20% केसेज में स्टिल रिमूव, क्योंकि इंसिजन आप दे चुके हैं और फ्यूचर में जो भी देखेगा वो उससे रिसीव होगा कि ये अपेंडिक्टमी हुई है. तो दिस इज़ द मैकबर्नीज पॉइंट, और यहाँ पे इंसिजन दिया दिस ग्रिड है इंसिजन, एंड दिस इज़ द लेंस इंसिजन. लेंस इंसिजन मिड क्लेविकुलर एंड मिड इन्वाइनल पॉइंट एक लाइन जो हमारी है, ठीक है. और दिस इज द लेप्रोटमी. लेप्रोटमी इंसिजन जो मिड abdominal या लोअर abdominal, ये लेप्रोटमी इंसिजन है. This is the opening of the external oblique. External oblique को आपने in the line of इंसिजन खोला, इंटरनल oblique को मसल्स की लाइन में खोला, और ये नीचे जो है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है इसको भी आपने स्प्लिट किया. तो एक्सटर्नल oblique मसल ये है, इंटरनल है, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है. और इसी तरह डिफरेंट लोकेशंस हैं. रिट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिक्स ये पेल्विक है, ये मीजोपेंडिक्स है, ये जो चौड़ा सा इस तरह इसमें पेंडिकुलर आर्टरी है. सिमिलरली रेट्रोसिकल अपेंडिक्स है, ये पीछे जा रही है जब आप सिकम को ऐसे इसकी सिरोजा को थोड़ा सा खोलते हैं, पेरिटोनियम को, तो आपको नजर आता है कि सिरोजा के ऊपर पड़ा हुआ है.
दिस इज द बेस ऑफ दिस अपेंडिक्स। यहाँ से अपेंडिक्स कट की है और ये आपने पकड़े लिया और इसको मीजो अपेंडिक्स को बांध के इसको सेपरेट कर। दिस इज द अपेंडिक्स, दिस इज द मीजो अपेंडिक्स, इसको आप बांध रहे हैं, ठीक है। सेम लाइक मीजो अपेंडिक्स, इसको मीजो अपेंडिक्स डिवाइडेड इन अपेंडिकुलर आर्टरी लाइक ये अपेंडिकुलर आर्टरी है, ये मीजो अपेंडिक्स है। ये अपनी बेस इधर है, ये टिप और बॉडी इधर है, फिर से आप इसको रिमूव कर रहे हैं। सिमिलर पिक्चर है, यहाँ से नीचे यूँ करके इसको निकाल दिया। और सम टाइम जब आप बेस को लाइगेट करते हैं देन यू हैव टू इमेजिनेट if indicated you are in suspicion of डाउट है कि इसकी में उसकी बेस है या पोर्ट्रेट कर देगी तो उसको आप बरी भी कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी इज मोर कॉस्मेटिक एज कम्पेयर टू ओपन, लेकिन ओपन सम टाइम तो बिल्कुल एक 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर इंची में निकाले जा सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट एनाटॉमिकल प्रिंसिपल्स फॉर मूविंग अपेंडिक्स। अगर नॉर्मल है डिबेट एंड हाउ टू प्रोसीड एंड कंटिन्यू लेप्रोस्कोपिकली। बेनिफिट्स के हैं, शॉर्ट लेंथ ऑफ स्टे एंड रिकवरी है, उसमें 3 पोर्ट्स हैं। यूजली दिस इज़ द 1 पोर्ट ऑन लेफ्ट साइड 10 मिलीमीटर जहाँ कैमरा है, और यहाँ पे एक पोर्ट ऊपर है 5 mm की और ये नीचे है। ये मॉनिटर सामने है, ये सर्जन है, ये असिस्टेंट है। असिस्टेंट ने कैमरा पकड़ा हुआ है, इधर से आप देखते हैं ये अपेंडिक्स है, इसको लोकेट करते हैं, इसको उठा के अब उसके आगे जो ऑप्शन हैं उसमें डिफरेंट ऑप्शन हैं। या तो आप एंडोलोप धागा अंदर डाल के उसको टाई कर दें, या फिर यह है कि लिगा शोर या स्केरिपल जो है उससे आप मीजो अपेंडिक्स को बर्न कर दें, उसको काट दें, उसको बांध दें और उसके बाद अपेंडिक्स को निकाल लें। अपेंडिक्स को आप उसमें भी निकाला जा सकता है, फाइव ऊपर वाली पोर्ट से भी और नीचे जो मैकबर्निस पॉइंट पर पोर्ट है उससे भी निकाला। तो दिस इज द एलियोसिकल जंक्शन, दिस इज द मीजो अपेंडिक्स। सेम पिक्चर सेकंड फायर ऑफ द एंडोस्टेपुलर। ये एंडोस्टेपुलर से मीजो अपेंडिक्स को स्टेपुलर जो लेप्रोस्कोपिकली स्टेपलर होते हैं अंदर उसको स्टेपल कर दें और अपेंडिक्स निकाल दें। एंड दिस इज द अपेंडिक्स ड्रॉन इनटू द रिड्यूसिंग स्लीव। तो ये अपेंडिक्स काट के उसको स्लीव में डाल के फिर आप निकाल देते हैं। अपेंडिक्स प्लेस एंडो बैग, ये एंडो बैग भी बहुत पे यूज़ होते हैं, तो बैग के अंदर डाल के ताकि वो कंटेमिनेशन तो यू हैव टू कंटिन्यू दी एंटीबायोटिक्स। अगर सिंपल अपेंडेक्टमी है, माइल्ड अटैक है तो 24 आवर्स के लिए एंटीबायोटिक सफिशेंट है। इफ मॉडरेट इन्फेक्शन इज प्रेजेंट you have to give for 48 hours or other perforated than 3 to 5 days. The James may vary per hospital. Single dose inflamed virulent 48 hours, perforated 5 days treatment. तो एंटीबायोटिक कौन से हैं? यूजली थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन्स एंड फ्लैजेल और गिवन इन कॉम्बिनेशन। कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी हैं, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है। पोस्ट ऑपरेटिव आईएस हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ द वुंड है, इन्फेक्शन इन द फॉर्म ऑफ पेल्विक एब्सेस, यूरिनरी रिटेंशन, निमोनिया, डीवीटी, परमिएबिलिज्म। अगर परफेक्टेड अपेंडिक्स, इवन मैंने पेशेंट ऐसे भी देखे हैं परफेक्टेड अपेंडिक्स एमई हॉस्पिटल में था पेशेंट में 7 days से 10 days स्टे इन द हॉस्पिटल, घर गया और वहाँ भी लेटा रहा और 2 हफ्ते बाद उसको फुल ब्लोन डीवीटी ऑफ द राइट लिम्ब, डायबिटिक पेशेंट था। और जब हॉस्पिटल प्रेजेंट किया सडनली ऑन वन नाइट ही कोलैप्स्ड ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ड्यू टू इमोबिलिटी ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। आईएस भी, वुंड इन्फेक्शन भी, पेल्विक इन्फेक्शन अकॉर्डिंग टू डिजीज़ है, पोटेंशियल में जा सकता है पेशेंट। अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट पहले है 48 से अबव, निमोनिया इमोबिलिटी की वजह से या चेस्ट फिजियोनी, स्मोकर पेशेंट है, तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस कैन डेवलप आफ्टर सर्जरी। एंड डीवीटी पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपको मिसाल दे चुका हूँ, फैटी पेशेंट है और डायबिटिक है, स्मोकर है, तो ये प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हर्निया एट द साइट ऑफ द इंसिजन। और ये एक मेरा शॉर्ट केस एफसीपीएस में पोस्ट अपेंडेक्टमी इंसिलिन हर्निया एट द राइट इलिक फोसा। बहुत बड़ा हर्निया था, मसल काटे सर्जन ने, वहाँ से हर्निया डेवलप हो गया और उसमें एक नर्व इन्वॉल्व होती है, जो इलेक्ट्रोगैस्ट्रिक नर्व डैमेज होती है तो उससे हर्निएशन ज़्यादा बनती है और पोस्ट ऑपरेटिवली एडहेजन्स बन सकती हैं जो प्रॉब्लम कर सकती है। वुंड इन्फेक्शन 5 to 10% of cases में present with erythema and pain and treated with drainage of the wound and antibiotics. And intra-abdominal abscess formation, ये abscess बनी हुई है, ये rare after use of pre-operative antibiotics। और पोस्ट ऑपरेटिवली फीवर है, मेलेज एनोरेक्सिया, अल्ट्रासाउंड सिटी गाइडेड उसकी एस्पिरेशन कर लें या सक्सेसफुल ड्रेनेज से मैनेज हो सकती है। पोर्टल पाइमिया बहुत लिथल कॉम्बिनेशन है,
उसमें वेरी रेयर लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैंग्रीनस अपेंडिसाइटिस, उसमें अपेंडिकुलर वेन से क्लिनिक पोर्टल वेन से अप टू द लिवर बाय द ड्रेनेज एंड प्रेजेंट फिर फीवर एगेज एंड जॉन्डिस। और जी हम थोड़ा सा ये है कि डॉक्टर डिस्कस कर रहे हैं अमाइनो ट्रांसफरेजेस आर इन थाउजेंड्स, INR is 4.3, bilirubin is nearly 4, or if there is something we should do for it. Basically, LFTs are deranged. Patient is going into the sepsis and septic shock, treated with antibiotics and draining of the hepatic abscess. नीचे राइट इलेक्ट्रोसा से बस शुरू हुई और ऊपर पोर्टल वेन में लिवर में चली गई और लिवर में जाके एब्सेस बना दी। दिस इज पोर्टल वेन में इट्स लीथल कॉम्प्लिकेशन। एडेजन जो हम एंड पे था, एडेजन और द इंटरसेक्शन, ये लूप है एलियम का जो शरीर में ऐसे गिरा हुआ है। मोस्ट कॉमन लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडेक्टमी, सिंगल बेड इज रिस्पॉन्सिबल और क्रोनिक पेन हो सकती है रेडियोलिकोसा में। लेप्रोस्कोपी के लिए आप इसको करें और बैंड को काट दें तो एडिनोलाइसिस करें तो पेशेंट इज रिकवर। हॉस्पिटल स्टे इन अनकम्प्लिकेटेड पेशेंट्स में 24 to 48 आवर्स, इन कम्प्लिकेटेड पेशेंट्स में वेरिएबल हो सकता है और पेशेंट रिटर्न्स टू नॉर्मल एक्टिविटी इन 2 to 8 weeks डिपेंडिंग ऑन severity and post-operative complication. What are the consequences if appendicitis is left untreated? It can ulcerate, it can suppurate, it can gangrene, it can perforate, mass can be formed, appendicular abscess can be formed, and generalized peritonitis, sepsis, septic shock, and death can occur. तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे appendicular mass, जो आगे जो secondly we will discuss about the appendicular mass radiolicosa, उसमें सबसे important mass है। So delayed presentation of the patient in weeks, 4 to 6 weeks, radiology will rule out the mass यहाँ पड़ा हुआ है। Difficult to exclude the other differential of the mass, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें क्रोन्स डिजीज भी है, कार्सिनोमा है, एक्टिनोमाइकोसिस है, अमीबियासिस है और बहुत सारी। Initial treatment is antibiotics and anesthesia, or if response continues and delayed appendectomy can be planned 4 to 6 weeks के बाद जब mass settle हो जाए, appendicular mass, तो फिर उसके बाद appendectomy करें। लेकिन if patient is not settled with the management, then you have to do laparotomy and deal with the mass। तो हम आप देखते हैं रेडियोलिकोसा mass की क्या क्या डिफरेंशियल हो सकती हैं and how to investigate and how to manage briefly for these patients। एब्डोमेन के 9 क्वाड्रेंट्स हैं, एवरीबॉडी नोज, ठीक है। उसमें राइट एपिकॉन्डियम है, एपिगेस्ट्रियम है, लेफ्ट एपिकॉन्डियम, राइट लंबर है, अम्बिलिकल है, लेफ्ट लंबर है, राइट आइलिकोसा, इसके हाइपोगेस्ट्रियम, लेफ्ट आइलिकोसा। तो ये दो लाइंस है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पाइलोरस ऑफ द स्टमक से गुजरती है और वर्टिकल लाइन जो है वो पेलिक्स के दरमियान मिडिल वाली कॉन्स्टेंट है। तो राइट इलेक्ट्रोसा में क्या है, एक अब्डोमिनल वाल है, एक इंटरअब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स हैं और नीचे रेटिकोपेरिटोनियम है। तो उसके मुताबिक मैस कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनी स्ट्रक्चर। एंटीरियर एब्डोमिनल वाल से मैस आ सकता है, जीएटी से, मेजेंट्री से, ब्लड वेसल से, लिम्फेटिक्स, नर्व्स, बोन्स एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल से आ सकता है। और जो स्ट्रक्चर सराउंडिंग में किडनीज है उनके मैस हो सकता है, टेस्टिस का हो सकता है, गाल ब्लैडर ऊपर से नीचे तक पल्पेट हो सकता है, यूट्रस है और उसकी अपेंडिजेस जो है ओवेरियन या यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं रेडियोलिकोसा में अगर उनको ध्यान में रखें तो वन बाय वन फ्रॉम एवरी स्ट्रक्चर कैन प्रेजेंट एज अ मैस इन द रेडियोलिकोसा। लेकिन सबसे कॉमन जो है वो अपेंडिकुलर मैस, जो हम अपेंडिक्स की बात करें। तो एक पेशेंट जो अपेंडिकुलर मैस के साथ प्रेजेंट करता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो अपेंडिकुलर मैस ही हो, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। जिस तरह एक पेशेंट जो मैंने मैनेज किया हुआ और शी वाज कंसिडर्ड एज अपेंडिकुलर मैस बट इट टर्न टू आउट BTH-CA और उसकी फिर राइट हेमिकोलेक्टमी एंड कोलोस्टमी की अल्टीमेटली पेशेंट एक्सपायर्ड ड्यू टू दैट इंटरवेंशंस। तो एंटीरियर वॉल में, एब्डोमिनल वॉल में हीमाटोमा, अब्सेस फॉर्मेशन, इंसिडेंट हर्निया जो मैं मिसाल दूँ पोस्ट अपेंडेक्टमी, ट्यूमर्स हैं बिनाइन लाइकोमा, फाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, फाइब्रोमाटोसिस एंड मेलिनल ट्यूमर, डेस्मा ट्यूमर्स जो मसल के ट्यूमर्स होते हैं स्किन में, सबक्यूटेनियस में, और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमास हैं जिसमें फाइबर से, डर्मोस स्किन से एंड लाइपोसार्कोमास जो फैट से। तो मेलिग्नेंट एंड बिनाइन ट्यूमर्स बेसिकली एब्डोमिनल वॉल से राइज कर सकते हैं।
और इंट्रापेरिटोनियल जो अपेंडिकुलर मैस अपेंडिक्स सिकम है, ग्रेटर मेंटम है, दूसरा एरिया में अपेंडिकुलर एब्सेस हो सकती है। आइलोसिकल ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल, कार्सिनोमा सिकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मेसेंटेरिक लिम्फेडेनाइटिस और लिम्फोडेनोपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबोमा, अमीबियासिस से टिफ्लाइटिस, टाइफाइड और डर्मेटोमाइलियम, क्रोन डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज है, एक्टिनोमाइकोसिस इसराइली से होती है। इंटरसेप्शन इन द किड्स, mesenteric cyst is very important differential, and verticulosis in elders is very important. Hepatoperitoneal जो है ileosac abscess, soft tissue sarcoma, aneurysm, tumor from the bony and cartilage of ileum, and undescended testis. Hepatoperitoneal lymph node enlargement in tuberculosis, filariasis, lymphoproliferative diseases, secondaries, and transplanted kidney and ascended kidney. अगर किडनी ऊपर नहीं असेंड किया तो ये रिटोपेनियल स्ट्रक्चर हैं जो डिफरेंशियल बनाते हैं। Miscellaneous है loose bodies like foreign bodies हैं loose bodies in the bones, ovarian mass and tuber-ovarian mass in the PID or malignancies and uterine mass. ये एक जनरल जो एक ओवरव्यू है उसमें any structure in the right iliac fossa can be responsible for development of the right iliac fossa mass. सबसे पहले appendicular mass, इस complication of acute appendicitis, greater momentum, एडिमेटस सिकल वॉल, लूप्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और इन्फेंट अपेंडिक्स ये मिलकर बनाते हैं। और नेचुरल फिनोमेना टू कंटेन स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, उससे बचाव करने के लिए मैस बनता है। फॉर्म होगा जब एग्जामिनेशन करेंगे, टेंडर, इरेगुलर। और ये मुझे याद आ गया, इट वाज माय शॉर्ट केस इन एफसीपीएस फर्स्ट एग्जामिनेशन, अपेंडिकुलर राइट iliac fossa मैस पे सारा वाइवा हुआ। So form, tender, irregular mass in the right iliac fossa with localized carding rigidity and other manifestations. Ultrasonography is help in assessing the nature and size of the mass. How to manage conservative and emergency surgery? Ocean Sharon regime is well known for conservative management. Patient को admit करना है, इनको करना है, fluid देने हैं, pulse temperature monitoring है, monitor size करना है mass का, IV fluid, antibiotics, third generation cephalosporin, metronidazole, एंड इंटरवल अपेंडेक्टमी। अगर पेशेंट सेटल हो जाता है आपको 6 वीक्स। अगर पेशेंट नहीं सेटल होता, पल्स ज़्यादा बढ़ी जा रही है, फीवर हो रहा है, पेन बढ़ रही है, स्वेलिंग का साइज बढ़ रहा है, वोमिटिंग परसिस्टेंट है, एब्डोमिनल पेन ज़्यादा हो रही है, और फिर यू हैव टू डू लेप्रोटमी एंड डील विद द अपेंडिकुलर मैस, उसमें इमरजेंसी अपेंडेक्टमी। अगर अपसेस बन गए, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस, पेशेंट टॉक्सिक है, हाइड्रेटेड है, टैकिकार्डिया, इनडिस्टिंक्ट बॉर्डर्स हैं, फ्लक्चुएंट है, गार्डिंग रिजिडिटी पॉजिटिव है, अल्ट्रासाउंड सिटी कंफर्म कर चुका है, तो ट्रीटमेंट इज कंजर्वेटिव इफ साइज इज लेस देन 4 सेंटीमीटर, और अल्ट्रासाउंड गट एस्पिरेशन इज साइज मोर देन 4 सेंटीमीटर, और सर्जिकल ड्रेनेज अगर इससे अच्छे से नहीं हुआ तो रिट्रोपेरिटोनियल पीछे से जाकर आपने इसकी ड्रेनेज करनी है, ड्रेन डाल दें, और अपेंडेक्टमी, इंटरवल अपेंडेक्टमी आफ्टर 12 वीक्स। जो सिंपल था उसमें 6 वीक्स है, और इसमें 12 वीक्स के बाद certain new plasma of the appendix जो डिफरेंशियल में आते हैं, कार्सिनो ट्यूमर्स इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल है, कल्चिट्स का स्कैल्स होते हैं, क्रिप्स ऑफ लिम्बर कैन, जो हिस्टोपैथोलॉजी अगर देखें डिजिटल आईलियम की या स्मॉल बॉल, तो उसमें क्रिप्स हैं, उन वहाँ पे सेल पड़े होते हैं, वहाँ से रिलीव होता है। अपेंडिक्स इज मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन न्यू प्लाज्मा ऑफ द अपेंडिक्स, और इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है ये, पेनलेस, वेल डिफाइंड, फॉर्म टू हार्ड, और अगर सिंड्रोम हो जो ट्यूमर स्प्रेड कर जाए लिवर की तरफ, तो फ्लशिंग है, डायरिया है, लिवर मेटास्टेसिस, एंड यू हैव टू इन्वेस्टिगेट बाय 24 hour urinary 5 hydraulic endoscopic acid, सीरम क्रोमोग्रानिन ए एक उसकी इंडिकेटर है, अल्ट्रासाउंड सिटी डिसाइड करता है, सोमेटोस्टेटिन रिसेप्टर्स की इंटीग्राफी, तो इसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं सोमेटोस्टेटिन वो डिफाइन करते हैं कि ये कार्सिनोइड ट्यूमर है। और ट्रीटमेंट क्या है, अगर अपेंडिक्स इन्वॉल्व है और लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो अपेंडिक्टमी इज एनफ, और अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर साइज है तो राइट हेमिकोलेक्टमी, इसमें लार्ज बाल अप टू द hepatic flexure and right branch of the right मिडल कोलोकार्टी की जो राइट ब्रांच है वहाँ तक आपने करना है। और अगर मेटास्टेसिस है तो लिवर में मेटास्टेक्टमी भी की जा सकती है। म्यूकोसील ऑफ द अपेंडिक्स, अगर आप इसको देखें तो ये
ये सारी म्यूकोसील है, ठीक है। रिटेन म्यूकोसिक्रेशंस हैं और म्यूकोसील शगाल बेटर म्यूकोसील बनती है। और सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकती है। इन्फेक्शन की वजह से एम्फाइमा हो सकता है। अगर रप्चर हो गई म्यूकोसील तो सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाइट, जिसमें खार पेट में म्यूकस भरा होता है, इट्स लिथल कॉम्प्लिकेशन ऑफ म्यूकोसील ऑफ अपेंडिक्स। अल्ट्रासाउंड सीटी फॉर डायग्नोसिस। अगर बेनाइन है तो ये अपेंडेक्टमी इनफ है। अगर सूडोमिक्सोमा पेरिटोनाइट जो मैलिग्नेंट कंडीशन है तो उसमें आपने सारी जो म्यूकस है और उसमें सारी पेरिटोनियम है वो लंबा चौड़ा काम है, साइटो रिडक्शन करनी है और इंट्रापेरिटोनियल कीमोथेरेपी जो उसको अप्लाई करना है। एडिनोकार्सिनोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स इज रेयर, पेनलेस हार्ड मैस है, अल्ट्रासाउंड सीटी कोलोनोस्कोपी डिसाइड कर सकती है। और राइट हेमिक्लेक्टमी इज द आंसर। ये मैस है जो अपेंडिक्स के अंदर जो कार्सिनोमा है, ये कार्सिनोमा है अपेंडिक्स का, और दिस इज अगेन कार्सिनोमा ऑफ द अपेंडिक्स। उसमें सिर्फ अपेंडिक्स नहीं बल्कि राइट हेमिक्लेक्टमी, अपेंडिक्स डिसलाइजिंग 10 to 15 सेंटीमीटर और हेपेटिक फ्लैक्चर, राइट साइड राइट ब्रांच ऑफ the middle colopart. Abdominal tuberculosis is very important intervention. Tuberculosis can involve intestine as well as the peritoneum. Intestine में ileocecal junction, ileum, diffuse colonial सारी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसमें अल्सरेटिव हाइपरप्लास्टिक एंसिलोटिक टाइप्स हैं और आइलियम में स्ट्रक्चर है। अगर पेरिटोनियम इन्वॉल्व है तो इसमें एक्यूट एंड क्रोनिक दोनों फॉर्म्स हैं। और क्रोनिक में एसाइटिस डेवलप हो सकती है, लोकुलेटेड एडिजन एंड प्यूरुलेट पस हो सकती है। और बाकी सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक नोड्स हैं, पेल्विस है, रेक्टम है, यूट्राइन है, ओवरीज हैं, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस कैन इन्वॉल्व एनी स्ट्रक्चर एंड एनी ऑर्गन इन द एब्डोमेन। तो आइलियोसेकल ट्यूबरकुलोसिस ये साइड जो आइलियम, प्रॉक्सिमल कोलन एंड पेरिटोनियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की कल्प्रिट। और मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, फूड इंजेस्ट की है, इन्फेक्टेड ट्यूबरकल बेसिलाई जो है वो चले गए हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन में। हेमेटोजेनियस स्प्रेड है अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, और लिम्फेटिक स्प्रेड है अगर ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेटिनाइटिस है तो वो उसने कोलन इन्वॉल्व कर लिया। और हेट्रोग्रेड स्प्रेड जो जेनेटिव ट्रैक से भी हो सकती है। तो टाइप्स अल्सरेटिव यानी अगर अल्सरेटिव लीजन हैं तो उसको कर सकते हैं। हाइपरप्लास्टिक यानी हाइपर ज़्यादा ग्रो किया हुआ है, मैस बनाया हुआ है तो वो इलियोसिकल वो हाइपरप्लास्टिक है, और मिक्स भी हो सकती है। तो मैस इन द एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस मिजेंटेरिक मिजेंट्री का मैच बन सकता है, एलियोसिकल जंक्शन का मैच बन सकता है, पेरिटोनियम का मैच बन सकता है। तो ये एलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस के एग्जांपल हैं, ये पड़ा है, ये पड़ा है। और इसी तरह हाइपरप्लास्टिक टाइप है तो ये एक उसकी ओरल कंट्रास्ट के साथ सिटी हुआ हुआ है, उसने एक हाइपरप्लास्टिक मैच शो किया हुआ है। हाइपरप्लास्टिक टाइप जो लेस विरुलेंट है, इंटरमिटेंट पेन डायरिया के साथ है, सिटोरिया एनीमिया, वेट लॉस, लो ग्रेड फीवर के साथ है, ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट आता है, इरेगुलर नॉन टेंडर मैस है। क्लोनोस्कोपी, डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी, मॉन्टूज, एलाइजा, पीसीआर सारे टेस्ट कंबाइन करके आप डायग्नोस कर सकते हैं कि हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है इन्वॉल्विंग द इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस, इलियोसिकल जंक्शन। तो ट्रीटमेंट अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो एटीटी, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो फिर इलियोसिकल डिसेक्शन विद द लिमिटेड राइट हेमिक्लेक्टमी एंड इलियोकोलिक एनास्मोसिस। क्रोन्स डिजीज़ जो है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है, और कैन इन्वॉल्व एनी पार्ट ऑफ द जीआईटी। और उसमें स्किप लीजन्स टिपिकल कोबलस्टोन अपीयरेंस है, म्यूकोजल अल्सरेशन, एडिमा ऑफ म्यूकोजल अल्सर्स, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन है, जो एडिशंस, इन्फेक्टिव मैस फॉर्मेशन है, फिस्टुलस फॉर्मेशन है, सिरोजा ओपेक एंड ये ऑटोइम्यून प्रोसेस है जो सारी लेयर्स को इन्वॉल्व करता है। और उसमें टिपिकल जो फीचर है कॉबल स्टोन, दरमियान से उभरे होते हैं और साइड से अल्सर्स होते हैं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, सिटी बेरिंग फॉलो थ्रू कोलोनोस्कोपी एंड बायोप्सी। अगर अनकम्प्लिकेटेड केस है तो स्टीरॉयड एंड इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग्स, और कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें रिसेक्शन एनास्मोसिस करें या फिर इलियोस्टमी और बबल बैरल या लोकल इलियोस्टमी, जो भी आप करें। तो कार्सिनोमा सिकम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो सिकम अपेंडिक्स का ट्यूमर है, एक कार्सिनोमा का ट्यूमर है। थर्ड कॉमन साइट फॉर कार्सिनोमा, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया, अल्टर्ड बाउल हैबिट्स, हार्ड नॉन टेंडर फिक्स मैस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल है कि हार्ड फिक्स मैस है या फॉर्म फ्लक्चुएंट मैस है।
तो उस पे क्लिनिकली भी सीन होता है कि ये अपेंडिकुलर मैस है, अपेंडिकुलर एब्सेस है, ट्यूबरकुलोसिस लगता है, कार्सिनोमा लगता है, एक्टिनोमाइकोसिस डिफरेंट सिनेरियो, तो उसके मुताबिक आपने उसको सेट करना है। तो कार्सिनोमा अगर आया तो उसमें उसकी डिफरेंट एटियोलॉजी भी है, डिफरेंट सिम्पटम्स हैं, उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कार्सिनोमा को आपने क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स हैं, पोलीपॉइडल टाइप है, अल्सरेटिव है, न्यूलर न्यूक्लियस है, ये सारी टाइप्स हैं। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टूल फॉर कल्ड ब्लड, बेरिंग फॉलो थ्रू, डिफेक्ट्स इन सीकम में कोलोनोस्कोपी बायोप्सी, राइट हेमिप्लेक्टमी एंड कीमोथेरेपी इज द आंसर फॉर द कार्सिनोमा ऑफ द सीकम। और उसमें जो फोलिनिक एसिड एंड डिफरेंट कीमोथेरेपी है जो उसके लिए यूज होती है। Actinomycosis is anaerobic gram-positive branch elemental fungal-like infections. जो Actinomycosis Israeli जो रे फंगस के नाम से होता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है सुराइकोफेशियल इंटरेस्ट, एब्डोमिनल जो है वो फिक्स्ड इन्यूरेटेड मैस रेटिलिकोसा में विद एक्सेस फॉर्मेशन, मल्टीपल साइनसेस हैं और सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं वो ग्रीन कलर के उसमें नज़र आ रहे थे। इंटेस्टाइनल ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और ना लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट। हाई डोज पेनिसिलिन एंड कोपेनोक्सिडोल (7/DS) is the treatment of choice for the actinomycosis. Amoebiasis and amoeba जो उसमें डायरिया हुआ, डायरिया के बाद उसने वहाँ पे लीन कर लिया, बना लिया, तो फ्लैंक शेप अल्सर्स हैं आइलिन में, लार्ज बाल में, और ग्रेनुलोमा जब बनते हैं तो वो लार्ज बाल में वो फिर मैस बनाते हैं। इट इज़ प्रोन टू लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन और रिकरेंट एमोबियासिस में होता है। और ट्रीटमेंट जो है इंटरमिटेंटली होती है, ब्लड में कुछ डायरिया, पेन है, फॉर्मेशन है। इन्वेस्टिगेशन वही है, स्टूल की एग्जामिनेशन से अमीबा रूल आउट कर लें, कोलोनोस्कोपी बायोप्सी है। और ट्रीटमेंट जो है वो इंटरनल हाई डोज में 800 मिलीग्राम फ्लैजिल जो है TDS फॉर 2 to 3 वीक्स, डायलॉक्सिनोल फॉरवेट है, पैरामाइसिन है, लोडोक्विनोल है, एंड सर्जरी फॉर कॉम्प्लिकेटेड केसेस। तो एमबीबीएस को आप देखते हैं विद एंटेरिक्सिस है, इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जो लिम्फेटिक्सिस भी हैं, जो इंटेस्टाइन से ओरिजिनेट हो रही हैं, कुछ कंजेनिटल हैं, टेराटोमास हैं, ट्रामेटिक हैं, कोल्ड ऑब्सेस ट्यूबरकुलोसिस की हो सकती है, हाइड्रेटेड सिस्ट हो सकती है। तो ये सिस्ट जो पड़ेगी है वो भी डिफरेंशियल है एडिलेकोसेमियास में। और सिस्ट की जो ट्रीटमेंट है वो इंडिविजुअली है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ द सिस्ट। इंटरसेप्शन है बच्चों में, हाइपोप्लेजिया ऑफ द पेट विच इज कॉमन, एडल्ट्स में पोलिप्स हैं, सब म्यूकोजल लाइकोमा ट्यूमर, ठीक है। एंड टाइप्स का होते हैं आइलियो आइलियल, यानी एक जो गट का पार्ट है दूसरे के अंदर चला गया, तो आइलियो आइलियल इंटरसेप्शन है, दोनों आइलियम, आइलियो कोलिक है, कोलो कोलिक है। पैथोलॉजी क्या है, ये एक पिक्चर दी हुई है इंटरस, ये एक पार्ट है, बाहर की एक शीट है ओटो शीट जिसको इंटरसेप्शन कहते हैं, ये एपेक्स अंदर गई हुई है, नेक इसके बाहर है, तो ये इंटरसेप्टम है जो अंदर गया है और बाहर आ रहा पार्ट, और जिसके अंदर गया है उसको इंटरसेपियंस, ये रेसिपिएंट, ये 3 पार्ट्स हैं, एंट्रिंग पार्ट है, रिटर्निंग एंड इनर ट्यूब है, रिटर्निंग पार्ट है, और शीट और ऑटो शीट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू कमेंट ऑन रेडियोलॉजिकल फीचर ऑफ इंटरसेप्शन। जो सिम्टम्स हैं वो सब एक्यूट और एक्यूट कोलिक एब्डोमिनल पेन है, वोमिटिंग है, ठीक है। और इसमें रेड करंट जेली स्टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप पल्पेट करते हैं तो एम्प्टीनेस है रेटिलिकोसा में, यानी वो इंटरपेट हुआ है, तो वहाँ एम्प्टी उसको कहते हैं साइन डी डेंस साइन। और इन्वेस्टिगेशन करें तो एक्सरे है, बेरियम एनीमा, अल्ट्रासाउंड सीटी, उसमें डिफरेंट साइंस हैं। दूसरा ये साइन है, दिस इज द सा शेप लंग, सी सा सेज शेप लंग और concavity towards the umbilicus, or this is the class sign on the bearing follow through. This is the pseudokidney sign on ultrasound, and this is the bull eye sign on ultrasound. तो ये 4 साइन बड़े इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है टू रूल आउट द एंड डायग्नोज इंटरसेप्शन। ट्रीटमेंट इज हाइड्रोस्टैटिक, नीचे से वाटर एनीमा, बेरियम एनीमा देते हैं और उसके प्रेशर से वो खुल जाता है, बाहर आ जाता है, और अगर नहीं है तो फिर रिसेक्शन होने की कोशिश करते हैं। Ileocecal sepsis is important differential. It's a cold abscess due to tuberculosis. पॉट्स डिजीज़ भी कहते हैं, बेसिकली डिजीज़ किसकी है, स्पाइन की है। स्पाइन की डिजीज़ से आइलियोसॉस मसल के अंदर ये सारा, ये राइट सॉस मेजर है, ये लेफ्ट है, तो सारी ये अब्सेस बन गई है, नीचे इन्वाइनल एरिया तक आ रही है। सॉस साइन है, पॉजिटिव होगा, जो हमने कहा अगर पेशेंट की आप एक्सटेंशन करेंगे उसको पेन होगी, और ग्रॉस फ्लक्चुएशन प्रेजेंट होती है यहाँ पे, स्पाइन टेंडनस होकर पीछे और पेशेंट का खूब निकला होगा, जिसको गिबस भी कहते हैं।
टिपस फॉर्मेशन इन्वेस्टिगेशन जो है ये है श्वास सबसेस एक्सरे करा लें स्पाइन का सीटी एमआरआई इमेज गाइडेड रेस्पिरेशन करें इंजीम डेनिस करें एटीटी शुरू करते हैं और स्पाइनल कोड में बेड रेस्ट तो रिटोपेरिटोनियल ट्यूमर्स आर रेयर पेनलेस है डिफाइंड मैस है रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड सीटी एमआरआई बायोप्सी और ट्रीटमेंट अगर बेनाइन है तो एक्सरसाइज कर दें सार्कोमा है तो उसका एक्सरसाइज करें कीमो रेडिएशन दें लिम्फोमा है कीमो रेडिएशन है सेकेंडरी है तो पैलिएटिव ट्रीटमेंट करें एनोरिज्म अगर वेस्कुलर लीजन है तो वेल डिफाइंड फिजिफॉर्म पल्सेटाइल मैस होगा कम नहीं होगा फ्लक्चुएट नहीं होगा हार्ड नहीं होगा पल्सेटाइल मैस होगा उसमें आप फील करते हैं कि एनोरिज्म है और अगर आप स्टेथ रखेंगे तो ब्रूई आपको साफ सुनाई देगी और मे प्रेजेंट विद डिस्टल स्टीमिया लो लिम्ब स्टीमिया होगा अल्ट्रासाउंड डोपलर स्कैन एंजियोग्राफी वो डिसाइड करेगी कि एनोरिज्म है स्टेंटिंग रिसेक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन इज द आंसर सम रेयर काजेज जो राउंड वॉर्म बोलस मैस यानी अगर राउंड वॉर्म है उसमें आइलियम में या उसमें लार्ज वॉल में तो वो एक मैस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं तो पेशेंट की हिस्ट्री होगी वो इन्फेस्टेशन की और उसको मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन इन डायनेमिक एरिया और ऑब्स्ट्रक्शन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं और नीचे सबसे नीचे बोन है उसको ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा हार्ट पेशेंट बोनी स्वेलिंग जो वो प्रेजेंट कर सकते हैं मैस के साथ और लास्ट स्लाइड इज रेयर काजेज किडनी से काजेज हैं टेस्टिस से है गालब्लैडर से है यूट्रस से है ब्लैडर से है तो किडनी अगर अनअसेंडेड है ऊपर नहीं गया नीचे पड़ा हुआ है तो राइट यूट्रस से मैस बना सकते हैं लेकिन जेनिटल है मोबाइल नॉर्मल किडनीज भी हो सकते हैं अगर नॉर्मल और मोबाइल है नीचे आ गया हुआ है और टेस्टिस है जो अनडिसेंडेड टेस्टिस है पेट नहीं है टेस्टिस और वो फील हो रहा है अपेंडिक्स वाली जगह पे ह्यूज गाल बेडर है बहुत रेयर है लेकिन नीचे राइट लिम्फोसिस में पेट हो और अगर यूट्रस है यूट्राइन एनलार्जमेंट है जो कुछ हम लिग्नेंसी एंड फाइब्रॉइड हो सकते हैं और अपेंडिजेस जो फीमेल की फीमेल ऑर्गन्स हैं ट्यूब ओवेरियन मैस हो सकते हैं ओवेरियन सिस्ट हो सकती है फाइब्रॉइड यूट्रस बेस हो सकता है तो उसके एनलार्जमेंट और लास्ट एट द लास्ट यूनि ब्लैडर जो है द वर्टिकुलम ऑफ द ब्लैडर वो प्रेजेंट कर सकता है राइट इंडिकेशन में विद द मैस थैंक यू वेरी मच एनी क्वेश्चन प्लीज हेलो जी एनी क्वेश्चन जी थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया